ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦਿੱਕਤ ਬਲੈਡਿੰਗ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਡਿੰਗ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਲੈਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਚਾ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ? ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर ही वह इंसान होता है जो हमें जीवन की आखिरी सांस तक का सब ठीक है का भरोसा देता है और इसी भरोसे की बदौलत लाखों जिंदगियां हर रोज बच जाती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अबोहर उपमंडल के गांव रामगढ़ का, जहां हर ओर से नाउम्मीद हो चुके परिवार को नागपाल नर्सिंग होम में नया जीवन दान मिला और अब यह परिवार डॉक्टर सुभाष नागपाल और डॉक्टर लतिका नागपाल का आभार जताते हुए परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहा है। रामगढ़ निवासी हनुमान ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी शीला को लेबर पेन हुई तो वह अपने निकटवर्ती गांव सीतो स्थित सरकारी अस्पताल में लेकर गए, जहां उसकी पत्नी ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकी। इस बात ने उन्हें चिंता में डाल दिया और डॉक्टरों ने भी उन्हें सिविल अस्पताल अबोहर रेफर कर दिया, जहां चेकअप करने के बाद गायनी डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब मरीज को बड़े अस्पताल या फरीदकोट जाना पड़ेगा। हनुमान ने बताया कि उसने फरीदकोट जाने की बजाय नागपाल नर्सिंग होम में जाना बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सबसे पहले और अच्छा इलाज यहीं से मिल सकता है। कि ना कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਨੂਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ੀਲਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਸੀਤੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀਤੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਪਾਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਟੋ ਗੁੰਨੋ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨੋਰਮਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦਿੱਕਤ ਬਲੈਡਿੰਗ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਡਿੰਗ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਲੈਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ? ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। उधर डॉक्टर सुभाष नागपाल ने डॉक्टर लतिका नागपाल के प्रयासों की सराहना की और कहा कि डॉक्टर लतिका के भरोसे ने मरीज को ठीक कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कभी किसी मरीज का बुरा नहीं चाहता। डॉक्टर का पहला प्रयास मरीज की जान बचाने का रहता है। कई बार भगवान के घर में ही डोर कमजोर हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन डॉक्टर मरीज की जान बचाने में अपना पूरा प्रयास करता है। डॉक्टर साहब एक पेशेंट आया सी ਜਿਹਦੇ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਆਦੇ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਹਨੂਮਾਨ ਫਰੋਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਲੇਜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 3:35 ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਵਿਦ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸੀਤੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਨੀਡਫੁਲ ਸੀ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਔਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਅਬੋਹਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਾਈਵਲ ਸੀਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਨ ਹੈਡ ਡਾਕਟਰ ਲਤਿਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚੇ।
पर बहुत तारीफ करनी पई डॉक्टर लतिका दी, ना तो सानू बच्चेदानी कढ़नी पई। इन्होंने इमीजिएटली उस केस में एक्सप्लोर करके जिथे जिथे भी मेजर ब्लीडिंग सी उन्होंने चैक की और उस तो बाद वो मरीज़ बहुत ठीक है प्रभु की दया नाल, डॉक्टर लतिका की मेहनत नाल, हॉस्पिटल की टीम की वजह नाल। और मेरा ये मैसेज थोड़े थ्रू सारिਆਂ ਨੂੰ भेजना चाहांगा मैं भी कोई हॉस्पिटल कोई किसी तरह की कमी नहीं करता। ये PPH एक नॉन कॉम्प्लीकेशन है, ये बारे कई डॉक्टरों कई बारी कई चीज़ों का सामना भी करना पैंदा जो सक्सैस नहीं मिलती, पर यह नॉन कॉम्प्लीकेशन है। असीं किसी को दोष नहीं देंगे, ना ही तारीफ करांगे। जो सक्सैस मिलती है तारीफ मिलती है, जो नहीं मिलती तो तारीफ नहीं मिलती। साडा प्रेस के थ्रू यही रिक्वेस्ट है बई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ डॉक्टर्स ਤੇ प्रेशर ना बनाओ। धन्यवाद, थैंक यू। सीरियस मरीज शीला को नया जीवन दान मिलने से खुश डॉक्टर लतिका नागपाल ने बताया कि शीला के पहले 3 लड़कियां थी, चौथा बच्चा लड़का हुआ था। उन्होंने बताया कि उम्र बढ़ने और 2 से ज़्यादा डिलीवरी होने पर मरीज के साथ इस तरह की दिक्कत आ जाती है, लेकिन उन्होंने पूरे संयम से काम लिया और बेहतरीन इलाज से शीला की जान बचाने में वह कामयाब हो गए। जो ये शीला पेशेंट था, ये हमारे पास जो है ब्लीडिंग के साथ रेफ़र हुआ था। क्योंकि पेशेंट का ये चौथा बच्चा था तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कई बारी जब ग्रेविडा अपनी पैरिटी बढ़ती जाती है, यानी कि बच्चे बढ़ते जाते हैं, तो बच्चेदानी को वापस सुगड़ने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। एक कारण तो ये होता है, और कई बारी डिलीवरी के बाद जो है आसपास से बच्चेदानी फट जाती है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको ट्रोमेटिक PPH कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसे OT में लिया। OT के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया। सबसे पहले तो हमने देखा कि अंदर कहीं प्लेसेंटा वगैरह कुछ चिपका तो नहीं हुआ है, तो उसको क्यूरेट किया गया, अंदर से सफाई की गई, और साथ में जो है बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो है दोनों साइडों पे छोटे छोटे से टीयर थे, जिनको स्टिच किया गया, और उसके बाद बच्चेदानी जो है दोबारा से लूज़ ना हो जाए, उसके अंदर जो है एक कैथेटर डाल के उसको उसी पोजीशन में रखा गया, इन्वोल्यूशन रहे जिससे यूट्रस की। तो ये सारी चीज़ें हमने की। उसके बाद पेशेंट का BP स्टेबल हो गया और पल्स रेट जो है वो थोड़ी सी डाउन हो गई, और हमने उसके साथ साथ ब्लड लगाया। तकरीबन 3 यूनिट ब्लड उसे लग चुका है। अब पेशेंट ठीक है, उसके TLC भी डाउन आ गया है और ब्लड वैसे भी मेंटेन्ड है, कोई ब्लीडिंग नहीं है। तो क्या इसके बाद वो फिर से माँ बन सकेंगी? बिल्कुल, वो फिर से माँ बन सकती हैं, क्योंकि बच्चेदानी जो है वहीं पे ही है, बच्चेदानी निकाली नहीं गई है। और बच्चेदानी को ब्लीडिंग ना करे, रिलैक्स ना हो, इसके लिए हमने उसके अंदर कैथेटर डाला है, जो कि हम 24 से 48 घंटे के बीच में वो निकालेंगे। उसके बाद बच्चेदानी के अंदर प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। मैडम, डिलीवरी के दौरान कई बार देखा गया है इमरजेंसी में ही पेशेंट को हॉस्पिटलों में लाया जाता है, उसके बारे में एक महिलाओं को कुछ संदेश भी कुछ दिन पहले चेकअप करवाना चाहिए, या क्या संदेश है? ये हम लोगों ने पहले भी मैसेज दिया है कि हर गर्भवती महिला को अपना ANC चेकअप रेगुलरली कराना चाहिए, जो कि है मंथली चेकअप्स 28 वीक्स तक, और 28 से 34 तक 3 वीकली या बाईवीकली, मतलब 2 वीक्स में एक बार, और उसके बाद जैसे ही 9 मंथ वो एंटर करती है वीकली चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। थैंक यू।